Welcome students. In this video I am going to teach you the pro forma of revaluation account. How to prepare a revaluation account when a new person joins in the partnership firm as a new partner. You know that once the new partner joins the partnership firm, there is a need to reevaluate the assets and reassessment of liabilities. These revaluation of assets and reassessment of liabilities should be shown in revaluation account. Revaluation account is a nominal account in which there are two sides, debit side and credit side. Now I am going to teach you which items are to be shown in debit side of revaluation account and which items will be shown in credit side of revaluation account. Let's have a look on debit side. The first item is asset account. Asset account कौन सा हम एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन. Once you revaluate the assets and you saw that the value of the assets are decreased, then the decreased value should be shown in the debit side of revaluation account. First point, the first item which you have to record in the revaluation account. तो डेबिट साइड में जो पहला आइटम आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो आएगा एसेट अकाउंट. जब आप एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हो, रिवैल्यूएट आप एसेट्स करते हो, तो वहाँ पे जो आपको डिक्रीज या इंक्रीज आएगा, इफ देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स देन दिस वैल्यू ऑफ एसेट दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. गॉट इट? तो फर्स्ट पॉइंट, decrease in the value of assets should be shown in debit side of revaluation account. Second, liability account. If there is increase in the amount of liabilities, it should be shown in the debit side of revaluation account. तो जब आप reassessment करोगे liabilities का, अगर आपको लगता है कि हमारी liability increase हो चुकी है, तो जितना liability का amount आपको increase हुआ है वो amount आप दिखाओगे debit side revaluation account का. So once you are going to reassessment of liability and you are seeing that there is a increment, there is an increase in the amount of liabilities, then the increase in the amount of liabilities should be shown in the debit side of revaluation account. The third point is unrecorded liability. Sometimes the organization sometimes the partnership firm forgets to record the लाइबिलिटीज़, तो हम उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. समटाइम्स यू डिडंट रिकॉर्ड द लाइबिलिटीज़, सो आपको पता चलता है कि ये लाइबिलिटी है, तो ये इंक्रीज़ हो गई, आपको भी लाइबिलिटी नहीं थी बिजनेस में, अब ये इंक्रीज़ हो चुकी है, तो इसको भी आप दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. सो वी कैन से इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शुड बी शोन इन द क्रेडिट डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. Another point is partners capital account, that is remuneration. अगर आपका एक्टिव पार्टनर होगा, एक्टिव पार्टनर आपको पता है वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्ट लेता है किसमें? बिजनेस अफेयर्स में. द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज एक्टिव पार्टनर, उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं. तो उस एक्टिव पार्टनर को आपको कुछ सैलरी देनी होती है, रेम्यूनरेशन देनी होती है. तो जब आप वो रेम्यूनरेशन या सैलरी किसको दोगे? एक्टिव पार्टनर को, वो आप पार्टनर्स कैपिटल, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे एज ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गॉट इट? समझ आ रहा है? को वी कैन से दैट इफ द पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स रेम्यूनरेशन और सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर, the amount should be shown in the debit side of revaluation account as partners capital account. फिर यहाँ पे लिखा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एक्सपेंस. यहाँ पे देखो और एक आइटम रियलाइजेशन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे आपको उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उन एक्सपेंसेस को भी आप डेबिट साइड दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. इफ देयर इज एनी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, दिस एक्सपेंस शुड बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. गॉट इट? फिर लास्ट पॉइंट है गेन on revaluation transfer to partners capital account or current accounts. If there is any
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जब आपने रिवैल्यूएशन किया है, रीअसेसमेंट किया है लाइबिलिटीज़ का, रिवैल्यूएशन किया है एसेट्स का, इफ देयर इज एनी गेन और प्रॉफिट, द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स. Got it? Now have a look on credit side. Which item is to be shown in the credit side of revaluation account? The first point is asset account. गो यहाँ पे आपको कौन सा एसेट इंक्रीज करना है, दिखाना है. वंस इफ यू आर गोइंग टू रिवैल्यूएट द एसेट्स, द एसेट्स आर इंक्रीज्ड, एसेट इंक्रीज हो चुका है, तो इस एसेट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे. इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, the increased value should be shown in the credit side of revaluation account. तो अगर डिक्रीज हो चुका है तो डेबिट साइड, अगर एसेट इंक्रीज हो चुका है तो क्रेडिट साइड. अब लायबिलिटी की बात करेंगे हम. तो लायबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज हो चुकी है, इफ़ यू आर गोइंग टू असेसमेंट द लायबिलिटीज एंड द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज टू बी डिक्रीज्ड, सो डिक्रीज्ड वैल्यू शुड बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. किस साइड में? क्रेडिट साइड में. गॉट इट? Another point is unrecorded assets. If there is any unrecorded assets, the unrecorded assets should be shown in the revaluation account. किस साइड में? क्रेडिट साइड में. तो unrecorded assets should be shown in the credit side of revaluation account. तो if there is any loss, जब आपने revaluation भी किया है और reassessments भी किया है, तो आपने देखा है कि आपका डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, देयर इज अ लॉस, तो उस लॉस को आप क्या करोगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स. इफ देयर इज एनी लॉस when you revaluate the assets and reassessment of liabilities, the loss should be transferred to partners capital account or current account. Got it? So this is the pro forma of revaluation account. It helps you in preparation of revaluation accounts. Got it? रिमेंबर दिस पॉइंट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है. इट हैज़ टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. विच आइटम्स आर टू बी शोन इन डेबिट साइड एंड टू बी शोन इन क्रेडिट साइड? आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल. गॉट इट?